Hi guys, how are you? Hi Aisha, hi Manisha, hi Anya, hi Nidhi, hi Priya, hi Shadi, कैसे हैं आप लोग? Hi Sarang, hi Tanya, कैसे हैं आप लोग? Hi Sabha, very good evening guys, welcome to Calcutta. मैं बहुत बढ़िया सारंग, thank you so much for asking. Okay, so let's talk about the session, and right now we are going to do HD bridal makeup look with analogous color scheme eye makeup. From airbrush to HD bridal makeup, there is a quite a lot many makeup techniques in the market nowadays. And while wedding are once in a lifetime affair, it is important for a bride to be look her best on her D-Day. This session will help you learn to create this look step by step. And for today's session, we are going to have with us Melissa Young. About her, she did makeup for FDCI, Wells Lifestyle Indian Fashion Week. She did makeup for BNW SSC, Skill Demo Makeup and Hairstyling at National Entrepreneurship Award 2017. She did makeup for Mrs. India 2018, and she has worked for Sumu as a makeup artist and a great, amazing makeup educator that we have on our platform. So yes, this session is going to be an amazing one, and I'm pretty much sure you guys are excited for this. This includes the part of color theory जो आपको सिखाया गया था एनालॉगस कलर स्कीम, उसी के अराउंड आज का जो आई मेकअप है वो होने वाला है. सो यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस सेशन एंड यू आर गोइंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस. So without wasting our time, let's invite our artist for today's session. Hi Melissa, can you hear me? Hi Smita, how are you after a long time? Welcome back to Calcutta, Smita. Hi Tushar. Hi Melissa, how are you? Very well, thank you. Good evening, guys. Hi. Just a moment. Hi Advika. Hi Ananya. Hi Anjali. Then we have Aisha. Hi Aisha. Hi Dishu. Hi Gurpreet. Hi Manisha. Hi Nidhi. Hi Priya. Then we have Shirley. Hi Shirley. Hi Tanya. Hi Sonia. Hi Smita. Hi Sarang. Hi Sabha. Hi Priya. Hi Nidhi. Hi MB, please rename yourself. Hi Gurpreet. Hi Anjali. So I hope you guys are doing great. Great. Good evening. Okay. So I can see we have a good number now. Also, Tushar, do we have anyone who is new in our class today? Yeah, maybe we have Advika for the first time. And apart from her, Mayuri Mayer. She is new. I think Nidhi ki bhi aaj first class. Nidhi, is this your first class? Yes. Yes, Okay. Nidhi ki first class. Perfect. So we have Nidhi, Advika, and Mayuri. Mayuri. Hello, I hope you guys are doing great and welcome to Calcutta. And I hope you guys learn a lot from today's class and from your upcoming sessions which you will be taking. And आज की class बहुत ज़्यादा interesting होने वाली है because we'll be learning a HD bridal makeup look. So I hope you guys are excited. And also, so now let me start with introducing myself to you three because you guys are new and कुछ students तो हमारे पुराने ही हैं who are taking classes from me. So my name is Melissa Young and I'm a professional hair and makeup artist. And today we'll be learning HD bridal makeup look जैसे कि आपको तुषार ने already बता दिया है और हम color scheme जो follow करने वाले हैं इस makeup में that will be analogous color scheme. पहले मैं जानना चाहती हूँ कि कौन किस किस को याद है what is analogous color scheme because I have we have a pretty good number of old students. Great, Ananya. Okay, we can start from Sabha. Sabha, बताइए what is analogous color scheme?
You can unmute yourself, Sabha. Sabha is saying a group of 3 color next to each other. Gurpreet is saying a he family के next color. Okay. Sabha, you are right, absolutely right. But इसको अगर clear तरीके से बोलेंगे तो जो भी हमारे color wheel में neighbor colors होते हैं वो हमारे एनालॉगस कलर होते हैं, मतलब जो एक दूसरे के जो भी लेफ्ट या राइट में जो भी 3 या 4 कलर्स हैं, स्पेसिफिकली 3 कलर्स जो होते हैं वो हमारे एनालॉगस कलर होते हैं, ठीक है. एंड गुरप्रीत, योर आंसर इज नॉट राइट. एक मिनट. जो एक ही फैमिली के कलर्स होते हैं गुरप्रीत, उनको हम मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम कहते हैं. ओके. सो गाइज, आज का जो HD क्लास है, ठीक है, आप सभी को पता है कि HD हाई डेफिनेशन मेकअप होता है, ठीक है, विच इज वेरी वेरी ट्रेंडिंग इन आवर ब्राइड्स. सभी ब्राइड्स चाहती है कि उनको एक HD ग्लास इफेक्ट लुक मिले अपने फेस पर. HD जो लुक होता है दैट इज बेसिकली अ बेस पार्ट, ठीक है, हमारा फेस वाला पार्ट होता है विच गिव्स अ नाइस फ्लॉलेस इफेक्ट टू द स्किन. और जब हम पिक्चर्स भी लेते हैं, ठीक है, it gives a nice clarity, I mean even without any editing or putting any contrast to the picture. Okay, the particular flawless face will look very flawless on the camera. इसलिए हम हाई डेफिनेशन कहते हैं. और हम जो रेगुलर मेकअप करते हैं, ठीक है, उसमें देयर आर चांसेस कि वी माइट हैव टू जो भी फोटोग्राफर हमारी पिक्चर क्लिक कर रहा होगा वो दैट पर्सन माइट हैव टू एडजस्ट कपल ऑफ थिंग्स इन आवर मेकअप, है ना, जो ऑटोमेटिक होता है, ठीक है. HD और HD का अगर हम बात करें तो उसके चार्जेस मार्केट में कंपैरेटिव टू अ रेगुलर मेकअप भी हाई होता है. इसी वजह से, and it gives a nice glow also to the skin, so that is the best part about it. So let me show you my presentation जिसमें आपको और डिटेल पता चलेगी about the HD effect. So just a moment guys. Tushar, please allow me to share my screen. Yeah, you can share it now. Okay, just a moment. Okay, I hope my screen is visible to everyone. Yes, it is visible. Okay, great. So जैसे कि आप देख सकते हो मेरे फर्स्ट स्लाइड में मैंने एक ब्राइडल की पिक्चर लगा रखी है जिसमें एक ब्यूटीफुल आई मेकअप हो रखा है which is following our analogous color scheme. साथ में if you see the face is so flawless, ठीक है, the base looks so perfect, there is no discoloration, it gives a nice shine to the skin. बहुत ही ज्यादा ग्लोई फेस लग रहा है, वो भी नेचुरली ग्लोई लगता है. दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट HD मेकअप, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि आपने अलग से कुछ लगा रखा है दैट टू गिव दैट ग्लो. ऐसा लगता है कि चेहरा नेचुरली आफ्टर मेकअप इट्स अ नाइस ग्लोइंग फेस. एंड यू कैन सी कि लिपस्टिक इज नाइस ब्यूटीफुल सटल कलर जो कि अकॉर्डिंग टू द आई मेकअप फॉलो किया गया है, बिकॉज आई मेकअप इज वेरी ब्राइट एंड कलरफुल. इसी वजह से लिप्स को बहुत सॉफ्ट रखा गया है. देन यू कैन सी कि ब्राउज भी जो बनाए हैं दैट इज नॉट लाइक प्रॉपर्ली डिफाइंड, थोड़ा बहुत फिल्ड करा हुआ है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द ब्राउज. सो दिस इज द ब्यूटी अबाउट दिस मेकअप, क्योंकि इसमें बहुत चीजें नहीं करनी पड़ती टू मेक दैट लुक HD, ठीक है. HD ऑटोमेटिकली लगता है व्हेन यू सी दिस ग्लोइंग रेडियंट फेस. सो दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, अब अगर आपको इस तरीके का जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में पिक्चर दिखाई, ठीक है, अगर आपको इस तरीके का मेकअप क्रिएट करना है, व्हाट आर द थिंग्स टू रिमेम्बर. फर्स्ट ऑफ ऑल योर बेस शुड बी डूई, ठीक है, डूई फिनिश का आपका बेस होना चाहिए. एंड जो आप प्राइमर भी यूज करोगे, यू कैन यूज एन इल्यूमिनेटिंग प्राइमर, आप यूज कर सकते हो ताकि आपके फेस में एक अच्छा सा ग्लो आए बिफोर योर मेकअप यू स्टार्ट. Then you have to define your brows, थोड़ा बहुत आप fill कर सकते हो according to your shape. Then colorful eye makeup with or without glitter, मतलब with glitter भी कर सकते हो, without glitter भी कर सकते हो. Then you can wear some nice lashes. Intense contour blusher highlighter, मतलब आपका contour blusher and highlighter should be very intense, deeply done, मतलब अच्छे से दिखना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि you are wearing some blusher, ऐसा लगना चाहिए you are getting that depth of that contour, मतलब contouring करने के बाद face sculpted लगना चाहिए, chiseled लगना चाहिए. साथ में highlighter is very important because we are doing a nice radiance face.
then nude lipstick as I told you earlier, then illuminating makeup fixer, मतलब हम सारा जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसका फिनिश या तो डूई है, ठीक है, या फिर अगर हम कोई मेकअप फिक्सर या प्राइमर ले रहे हैं वो भी डूई फिनिश या इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट का ही यूज करेंगे टू गेट दैट एग्जैक्ट इफेक्ट ऑफ द लुक. नाउ पर्पस क्या होता है हमारा एचडी ब्राइडल मेकअप करने का, क्या मतलब हमारा मोटिव या पर्पस होता है. नंबर 1, गेट अ ग्लास लाइक इफेक्ट, मतलब फेस में एक नाइस ग्लास लाइक इफेक्ट आना चाहिए, मतलब इट शुड शाइन लाइक अ ग्लास, ठीक है. एंड मेन पर्पस इज दैट इट शुड नॉट लुक लाइक मेकअप, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अगर आप इतने सारे स्टेप्स कर रहे हो, ठीक है, इतना अच्छा एक ग्लास इफेक्ट दे रहे हो, रेडियंस ग्लोइंग चेहरा दे रहे हो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो ऐसा ना लगे कि बहुत कुछ थोपा हुआ. इट शुड लुक लाइक अ नाइस सॉफ्ट मिनिमल लेस प्रोडक्ट लगाया हुआ मेकअप लगना चाहिए. हम इस तरीके का मेकअप अपने ब्राइड्स पे कर सकते हैं, पार्टी मेकअप में कर सकते हैं. मोस्टली हम इस तरीके का मेकअप इवनिंग टाइम पर ही देते हैं, ठीक है. साथ में ऑल मीडियम टू डार्क टोन के आई शेडो हम यूज कर सकते हैं, मतलब चाहे आप डे कलर्स यूज करना चाहो कि आप नाइट कलर्स यूज करना चाहो, यू कैन यूज बोथ द कलर एंड इट गिव्स अ बोल्ड स्टेटमेंट एंड ग्लैमरस लुक. मतलब जब आप ये लुक कंप्लीट करते हो सो इट गिव्स अ नाइस बोल्ड इफेक्ट इफ यू डू अ नाइस कलरफुल आई शेडो. साथ में एक बहुत ज्यादा ग्लैमरस और ग्लैम लुक क्रिएट करता है, बिकॉज इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव एट द सेम टाइम. बिकॉज अगर आपने एक एचडी इफेक्ट का मेकअप करा है विद एनालॉगस कलर स्कीम तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड. आप बहुत अलग से ही यू लुक वेरी डिफरेंट एंड ब्यूटिफुल and very attractive. So the focus will be completely on that particular person जिन्होंने इस तरीके का look create करा होगा. साथ में HD फाउंडेशन अवेलेबल इन मार्केट. काफी बार हमें पता नहीं होता कि कौन से HD प्रोडक्ट्स हैं. So ये मैंने सारे ब्रांड्स मेंशन कर दिए हैं which I am aware of and I have used. So you can take a picture so that you can go try and buy. Okay, I hope everyone has taken a screenshot. Now vanity essential to create this look. क्या क्या प्रोडक्ट्स हम यूज करेंगे इस तरीके का मेकअप क्रिएट करने के लिए वो आप देख सकते हो यहाँ पे. इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है so that आप ये सारे प्रोडक्ट्स रेडी कर सको. साथ में if you do not have these products so you can buy and then create this look. And then our next step would be ब्रशेस के बारे में जानना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास राइट ब्रशेस नहीं है तो आपका लुक वैसा अचीव नहीं होगा जैसा आप चाहते हो. सो ये सारे मैंने कल्ट कटर के ब्रशेस मेंशन करे हुए हैं, उनके पिक्चर्स डाले, उनकी यूसेजेस मेंशन करे हैं, उस ब्रश का नाम और उस वो ब्रश किस काम के लिए यूज होता है वो मेंशन करा हुआ है. सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ एवरी स्लाइड जो मैं अभी आगे दिखाने वाली हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन. और ये सारे ब्रशेस मैंने वो मेंशन करें जो मैं हर क्लास में यूज करती हूँ, बिकॉज द क्वालिटी इज वेरी गुड, द ब्रिसल्स आर गुड एंड द ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होती है. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज ब्रशेस. यू कैन सी नाउ द सम मोर ब्रशेस फॉर आई मेकअप. Now you can see some brushes for face. Make sure you guys are taking a screenshot because these slides are very important. बाद में अगर आप after कभी-कभी ऐसा होता है you guys are not practicing and later on आप सोचते हो practice करो, then you forget कि कौन से brushes मैंने कौन से step पर use करे, तो इससे आपको remind भी हो जाएगा. And last we have lip brush जो किस तरीके का दिखता है, उसके क्या यूसेजेस है वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. Okay, now these are the looks जो आप क्रिएट कर सकते हो. These are some nice HD effect look जो आप देख सकते हो. It looks so nice and beautiful. And the colors which you see, it's so beautifully placed. जैसे कि yellow, there's a slight orangish tone, then we have purple. ब्लैक एंड ब्राउन का इफेक्ट क्रिएट करा है फर्स्ट लुक में. Then again you can see some colors of purple, blue and yellow. Then we have some nice combination
ऑफ येलो, ऑरेंज, ब्लैक, इस तरीके से भी आप क्रिएट कर सकते हो. Then again, you will see some purple and yellowish effect. मतलब मोस्टली पर्पल एंड येलोइश का ज्यादा यूसेज होता है इस तरीके के कलर स्कीम जब आप फॉलो करते हो. देन यू कैन यूज सम कलर्स ऑफ ब्लू, येलो, पर्पल, ब्लैक एंड ब्राउन आर समथिंग जो आप किसी भी कलर्स के साथ एजेस में लगा सकते हो एंड इट गिव्स अ नाइस इफेक्ट टू योर कलर्स. जो भी आपने कलरफुल शेड्स यूज करे हैं, अगर आप एजेस में थोड़ा सा एक ब्लैक का टच या ब्राउन का दे देते हो, सो वो ऑटोमेटिकली आपके मेकअप को और ज्यादा पॉप आउट करता है. सो दिस इज द रीजन यहाँ पे ये सारे प्लेस करे गए हैं. ओके, सो दिस इज द लास्ट स्लाइड. ओके, लवली. ऑल राइट, सो आई होप कि आप लोगों को कोई डिफिकल्टी नहीं हुई प्रेजेंटेशन को समझने में. इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी और इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी राइट नाउ. Exactly, guys. Before we start, if you want to ask anything, if you have any questions regarding the PPT or the look that we are doing, you can definitely ask, or else we'll start. Yes. If not, then please let us know. Yes, Aisha. हाँ मैम, आप HD मेकअप के लिए मैक का फाउंडेशन यूज कर सकते हैं क्या? यस, आप मैक भी यूज कर सकते हो, बट मैक में भी दो तरीके के फाउंडेशन आते हैं. एक फ्लूइड में आता है, ठीक है, जो बहुत थोड़ा लाइट फिनिश होता है, और एक हाँ. दूसरा आता है जो फुल कवरेज में आता है, ब्लैक पैकेजिंग में. सो डिपेंड करता है कि मैम, आप कौन सा हाँ, वाला यूज कर. मैम मेरे पास SPF का है. ओके, SPF विद फुल कवरेज है तो आप यूज कर सकते हो. हाँ मैम. मैम, और मेरा एक क्वेश्चन था कि जब भी मैं मेकअप करती हूँ, मेकअप मेरा उतना ग्लॉसी नहीं लगता, मतलब शाइनी नहीं लगता, ऐसा क्यों? अच्छा, ऐसा इसलिए होता है, या तो आप अपना स्किन केयर सही से नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ठीक है, हाँ. या फिर आपको अपनी स्किन टाइप नहीं पता, उसके हिसाब से आपने शायद गलत प्रोडक्ट्स खरीदे हैं. कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है. क्या पता आपकी स्किन विंटर्स में टुवर्ड्स ड्राई हो और आप हाँ. शायद मैट फिनिश प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, ठीक है. साथ में अगर आपको अपनी स्किन टाइप पता है तो उसके हिसाब का आपका मेकअप का भी फॉर्मुलेशन होना चाहिए. अगर ड्राई स्किन है तो आपको सारे क्रीमी प्रोडक्ट्स यूज करने हैं जिसका फिनिश होगा डूई इफेक्ट, जिसमें शाइन आए, ठीक है. क्या पता आप वो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो जो मैट फिनिश के हो. हाँ समझे मैम, मुझे इसमें और एक शायद. प्रॉब्लम होती है, मैं कभी भी मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ तो आप आई थिंक म्यूट हो गए हो. मेकअप करने के थोड़ी बाद थोड़ा फेस ऑयली दिखने लगता है. जब आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हो उसके बाद थोड़ी देर के बाद, मेकअप करने के थोड़ी देर बाद मुझे फेस ऑयली लगता है. आप कौन सा मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हो? मैम, लॉरियल वाला. ओके, लॉरियल का कौन सा, मतलब पर्टिकुलर कोई आप बता सकते हो कौन सा? मैम, मेरे पास दो है, एक ऑयली स्किन के लिए और ड्राई स्किन के लिए, दोनों मैंने परचेस किया था. हाँ, ठीक है. लॉरियल एंड हाइड्रा फ्रेश एंटीऑक्स. ओके, हाइड्रा फ्रेश मींस वो काफी अच्छा हाइड्रेशन देता होगा चेहरे को. हाँ हाँ मैम. हाँ, सो क्या और होता है. हाँ, और दूसरा कौन सा है? मैम देखती हूँ. ऑल्सो देर आर चांसेस कि आप अपना फाउंडेशन को ना अच्छे से सेट नहीं कर रहे हो, तब भी देर आर चांसेस कि ऑयली हो जाए चेहरा, मतलब सेटिंग पाउडर से. मैम, और एक हाइड्रा फ्रेश एंटी शाइन. ओके, एंटी शाइन मतलब वो वाला है फॉर ड्राई स्किन, और जो दूसरा है हाइड्रा जेल, आई गेस हाँ वो मैम. होगा ऑयली स्किन के लिए. जी मैम. तो आपको वो अपनी लगाने, स्किन टाइप पता है तो उसके हिसाब से ही लगाना है आपको. हाँ, ड्राई स्किन वालों को भी लगा के देखूं तो थोड़े देर के बाद मतलब थोड़ा ऑयली ऑयली दिखने लगता है फेस. वही प्रॉब्लम हो रही है मुझे क्या मेकअप में. पता आपका स्किन कॉम्बिनेशन हो. आपने स्किन की क्लास ली है, स्किन केयर की क्लास ली है? मैम, मैंने कलर थियरी वाला शायद अटेंड किया था. ओके, एक बार आप स्किन केयर की क्लास अटेंड करना, वहाँ उस क्लास में आपको पता चलेगा कि आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो कि आपकी कौन हाँ, सी स्किन स्किन टाइप. केयर की मैं अटेंड की थी मैम. आपने जो ऑयली स्किन के लिए प्रोडक्ट सब बताए थे ना, आप ऑयली, ड्राई स्किन और कॉम्बिनेशन सब बताया था ना, मैंने वो स्क्रीनशॉट करके रखा है. अच्छा अच्छा, ग्रेट. तो आप उसमें देखिए, उससे डिटरमाइन करिए कि आपका फेस विंटर्स में स्पेशली ड्राई है हाँ. कि कॉम्बिनेशन है कि ऑयली है,
ठीक है, उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट चूज करने हैं। कुछ तो आप गलत चूज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, इसी वजह से वो थोड़ा ऑयली हो जाता होगा। ओके मैम। ठीक है, और अपना और हाँ, मैं सुप्रा कलर से ना, वो कौन से सीजन में यूज करते हैं पर्टिकुलरली? सुप्रा हम वैसे विंटर्स में यूज करते हैं। जी, समर में यूज करें तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी क्या शायद उसमें? समर में प्रॉब्लम यूज नहीं, करें? समर्स में आई गेस, आई मतलब अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, क्योंकि वो एक तो ड्राई स्किन के लिए होता है, ठीक है। जी सुप्रा जी में जी। अच्छा हाइड्रेशन होता है, ग्लो होता है, तो ये तभी हाँ हाँ विंटर्स में ज्यादातर लोग वो यूज करते हैं। समर्स में हम वेरी ड्राई या ड्राई स्किन पर ही सिर्फ यूज कर सकते हैं वो, अदरवाइज वो मेल्ट हो जाता है। हाँ, ठीक है मैम। थैंक यू मैम। You're welcome. Okay, do we have any more questions? Okay, Sabha is asking what should be the lipstick color for analogous makeups? You can use colors of nude, ठीक है, nude with some touch of brown or pink, and अगर कोई बहुत डीपर टोन में है then we have touch of थोड़े चेरी कलर्स के भी आते हैं, उस आप डीपर टोन पे यूज कर सकते हो। इफ समवन इज वेरी फेयर तो आप न्यूड यूज करिए। मीडियम टोन समवन लाइक मी, तो उस पे यू नो न्यूड विद पिंक और ब्राउन इफेक्ट ऐसा यूज कर सकते हो, उसका एक रिफ्लेक्शन आना चाहिए उस कलर का। सो इस तरीके से आप चूज कर सकते हो। रुपिंदर ने हैंड रेज करा है। हेलो मैम, हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैम। मुझे ये पूछना था कि जैसे हम कई बार फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, किसी किसी की स्किन पे अपनी एज से कुछ कई बार बड़ा लगता है फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद अपनी एज से बड़ा लगता है, ओके। तो आप मुझे थोड़ा सा इसमें अभी करके बताएंगे कि कुछ किसी किसी की स्किन पे, सभी की नहीं, हाँ जी। ऑलमोस्ट कुछ पर्टिकुलर क्लाइंट्स पर ऐसे हुआ है मेरे साथ कि अप्लाई किया तो वो कहता है कि मुझे अपनी एज से कुछ बड़ा लग रहा है अपना फेस। ओके, सो क्या होता है, जब हम अपने आप को जब जनरली देखते हैं, हमें वो देखने की आदत होती है, ठीक है। जब कुछ जी कुछ लोगों को क्या होता है, ये साइकोलॉजी भी होता है, ठीक है, मेंटली भी हमें उस सब इंसान अलग सोचते हैं, ठीक है। काफी साथ बार मेरे साथ भी हुआ है कि जब हम अपने फेस को इवन टोन का कर देते हैं ना, तो जी हमें अपना फेस थोड़ा जैसे ऊपर एक लेयर लग गई, ठीक है, पतली लेयर भी लगा रहे हो तो लेयर तो लेयर है, राइट, फाउंडेशन का। ओके तो क्या ओके होता है, वो थोड़ा सा थिक लगने लगता है चेहरा, और थोड़ा कंपेरेटिव टू अ नॉर्मल फेस थोड़ा सा हैवी लगता है। इसी वजह से हम कॉन्टोरिंग, ब्लशिंग, हाइलाइटिंग करते हैं ताकि फेस थोड़ा सा पतला लगे या चिजल्ड लगे, ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन लगाते हैं तो वो एक इवन टोन का हो जाता है, थोड़ा बड़ा लगने लगता है चेहरा। इसी जी वजह से कुछ कुछ लोग वो ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। पर अगर आप अच्छे से कॉन्टोरिंग और बाकी स्टेप्स कर रहे हो तो फेस फिर ऑटोमेटिकली सिमेट्री में आ जाता है। जैसे कई बार हम अप्लाई करते हैं फाउंडेशन तो कुछ लोग बोलते हैं हमें कंटूर नहीं करवानी है, हम्म। तो तब भी लगता है फेस बड़ा। तो वो आपको उनको समझाना पड़ेगा कि उनपे क्यों कॉन्टोरिंग का क्या रोल है, ठीक है। और कॉन्टोरिंग का मतलब मेन रोल आपको समझाना है कि क्यों वो करना जरूरी है, अदरवाइज उनका फेस बहुत फ्लैट लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये एरिया बिल्कुल फ्लैट लगेगा तो वो ऑटोमेटिकली, अगर उनका नेचुरली फेस थोड़ा चबी है तो वो और चबी लगने लगेगा आफ्टर फाउंडेशन। इसी वजह से जब तक कॉन्टोर ना लगाओ तो वो उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो आपको समझाना जरूरी है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टोरिंग करना। ओके, थैंक यू मैम। Okay, you're welcome. Yes, Ananya, you can do the practice with us. It will be great for you. And as well as अगर आप साथ में volunteer करते हैं तो बाकी लोग भी देख पाएंगे। मैम ब्राइडल के लिए क्राइनॉन बेस्ट यूज करते हैं। ब्राइडल के लिए ब्राइडल के लिए टोनर हमें आयुर हर्बल का यूज कर सकते हैं, और स्किन के लिए आयुर हर्बल में भी काफी सारे इंग्रेडिएंट्स आते हैं, डिपेंड करता है कि वो कौन से इंग्रेडिएंट है उसके अंदर। जैसे कि कोई कोई टोनर होता है जो रोज टोनर होता है, वो ऑल स्किन टाइप पे जाता है। कोई कोई होता है क्यूकम्बर, वो भी हर पे जाता है। लेकिन कोई कोई होती है टी ट्री है, ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ड्राई के लिए नहीं जाएगा। ड्राई के लिए वी यूज लैवेंडर। तो डिपेंड करता है उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट है, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो।
एंड आप कुछ क्रायलॉन का पूछ रहे थे, वो क्वेश्चन मैं समझी नहीं तुषार. ओके मैम, एचडी मेकअप में या नॉर्मल मेकअप में बस ये डिफरेंस है ना कि हम एचडी मेकअप में एचडी प्रोडक्ट यूज करते Yes, that is the only difference. हैं. ओके, आई थिंक वी आर डन विद द क्वेश्चंस हियर. आई थिंक दीपशिका वांट्स टू आस्क समथिंग. Okay, Deepshika has a question, I guess. यस यस. मैम Okay. मेरा क्वेश्चन ये है Okay. सॉरी मेरे पास ब्राइडल का अल्ट्रा पैलेट है, तो क्या वो मैं एचडी के लिए यूज कर सकती हूँ? आपके पास कौन सा अल्ट्रा पैलेट है, कौन से ब्रांड का? क्रेलॉन का ब्राइडल जी अल्ट्रा हाँ, वो 8 एचडी शेड है. पैलेट ही आप वो यूज कर सकते हो. ओके, थैंक यू मैम. बट उसमें आपको थोड़ा सा अपना रेगुलर फाउंडेशन भी मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि एचडी फाउंडेशन थोड़े से लाइट फिनिश ही होते हैं, तो उसपे डबल होता है. मतलब अपना नॉर्मल रेगुलर फाउंडेशन के ऊपर यू हैव टू पुट थोड़ा सा एचडी फाउंडेशन, तभी जाके वो एक कवरेज देगा. ओके, ऑलराइट. So now let me just get my foundation. Okay, just give me like 1 minute and I will be back. Okay, Tushar? Sure. Yeah. Okay, guys, so I'm back. So Tushar, let's just start with the demonstration now. Okay, Yeah, we can. and you can just check if who all are practicing, but I think we can take the volunteer part next time. Sure, perfect. Yeah. So Guys, you all are practicing with us today. Please raise your hands while Melissa, you can start. yeah. So I'm starting with cleansing my face. So I'm using this cleanser by Nivea. इसको मैं थोड़ा सा कॉटन पैड पर ले रही हूँ. इस तरीके से अपने फेस को वाइप करेंगे. अगर कोई भी डर्ट एंड ऑयल है वो निकल जाएगा. So once this is done, we can move to our next step, which is toner. For my toner, I'm using this toner by Forest Essential. This is a rose toner, very good for all skin type. Let it settle down. And till then, let me look for my moisturizer. Okay, so the moisturizer which I will be using is by Biotique. This is Bio Nectar. Just place the moisturizer.
Like this, we'll just massage. जब तक हमारा मॉइस्चराइजर स्किन पर अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, तब तक वी विल मसाज. So once हमारा moisturizing part हो जाएगा, we'll move to our next step, which is a primer. For my primer, I'm using this by the Balm Cosmetics. I'll take it on the back of my hand. और जहां जहां पे भी मेरे ओपन पोर्स है, सबसे पहले वहां पे टैकल करेंगे, which is my T zone. So जिन जिन एरियाज पर अभी मैं लगा रही हूँ, वो एरिया होता है हमारा T zone. So once this part is also done, we'll move to our next step, which is our corrector. So for my corrector, I am using this palette by Krylon Derma. और इसमें I will be using this orange corrector, which is D34. और with the help of my spatula और mixing plate में मैं अलग से लूंगी प्रोडक्ट. Like this. And I will be using this synthetic brush to do my application. Synthetic brush इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि इससे क्रीमी प्रोडक्ट्स हम पिक कर सकते हैं. और सबसे पहले मैं उन एरियाज पर लगा रही हूँ जहाँ मेरी अनइवननेस है, स्टार्टिंग फ्रॉम माय चिन. एंड द एरिया जहाँ पे मेरे एक्ने मार्क्स हैं. Also here. Now sides of my nose. And on my under eyes. Both the sides we have to apply. Sides of my forehead. We'll do some more orange corrector. थोड़ा सा और लेंगे orange corrector. धीरे धीरे अपना प्रोडक्ट बिल्ड करेंगे. जैसे कि फोरहेड में आई हैव टू अप्लाई अ बिट मोर, सो आई विल टेक सम मोर.
अब जहाँ पे भी मुझे लग रहे हैं मेरे मार्क्स में अभी भी थोड़ी डार्कनेस दिख रही है, वहां पे मैं थोड़ी सी और एप्लीकेशन करूंगी ऑफ दिस कलर। इस तरीके से जैसे ही हमारा एप्लीकेशन हो जाएगा, we have to move to our next step, but before that let's clean our palette. इसको पहले क्लीन कर लेंगे एक बेबी वाइप से। नाउ अब मैं क्रायोलॉन के ही पैलेट में से अपना शेड निकालूंगी। सो आई विल बी यूजिंग दिस शेड फर्स्ट। लेट मी चेक इफ ये मेरे शेड फेस स्किन टोन से मैच करता है। दिस इज D4.5। इस तरीके से शेड को एक्टिवेट कर लेते हैं, बिकॉज आई एम यूजिंग क्रायोलॉन डर्मा जिसका फिनिश मैट है। सो इसको एक्टिवेट करके ही ये अच्छे से मूव करता है लाइक दिस। थोड़ा सा एक टेस्ट पैच करते हैं। Okay, this shade is going very well with my skin tone, but let's see and match another tone with this. अब मैं इसमें थोड़ा सा एक D4 भी थोड़ा मिला के देखती हूँ ये कैसा शेड बनता है। Like this। थोड़ा सा और D4.5 को मिला के देखते हैं कैसा मिक्सचर ऑफ कलर बनता है। I think this shade looks much better। अब मैं जब D4 and D4.5 मिला रही हूँ, so it's giving me a nice complexion। एक अच्छा टोन दे रहा है, नेक से भी मैच कर रहा है। So let's use this shade। उसी सिंथेटिक ब्रश से मैं पिक करूंगी क्योंकि ये भी एक क्रीमी प्रोडक्ट है। और सबसे पहले हम करेंगे एप्लीकेशन and then we'll do the blending part। So first I will cover one side of my face। So the Sabha, the primer which I use, that has a slight dewy effect. Okay, so I have to also follow some steps according to my skin type. ठीक है, जो मैंने वो चार्ट लगाया था, that is for your client। ठीक है, जो आप यूज करोगे क्या क्या यूज करना चाहिए। ठीक है, I will mix and match, but in the end I will make my face look dewy। तो मैं मिक्स प्रोडक्ट यूज करूंगी अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली। ठीक है,
साथ में जो हमें लुक क्रिएट करना है उसको भी ध्यान रखते हुए, क्योंकि अगर मैं सुपरा यूज करूंगी एज यू नो विच हैज अ नाइस डूई इफेक्ट, तो मेरे स्किन में कुछ देर बाद वो थोड़ी देर में मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो दोनों ही चीजों का ख्याल रखना है कि व्हाट शुड बी द लुक, पर्पस क्या होना चाहिए हमारे लुक का, साथ में अपने स्किन टाइप को भी ख्याल रखना है। नहीं तो उस वक्त तो बहुत अच्छा लगेगा फेस, थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगा अगर वो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नहीं। Now I will be using this stippling brush to do the blending. इस तरीके से in this circular motion मैं blend कर रही हूँ अपना फाउंडेशन। So once this is done, again हम अपने forehead area को कवर करते हैं। पहले let me cover half of my forehead and then quickly do the blending in this circular motion again. Now on the other side. Now again in this circular motion. और अपने हेयर लाइन से पूरा बेस मर्ज कर देंगे so that वो अलग अलग ना लगे। So once the forehead part is done, अब हम अपने दूसरे areas को cover कर सकते हैं। So we have to make the foundation again. So हमें याद होना चाहिए कि हमने कैसे मिक्सिंग करी है। सबसे पहले हमने D4.5 को एक्टिवेट किया था। Now I'm mixing a bit of D4. अगर आपको वो थोड़ा ज्यादा लाइट लगने लगा दिखने में, तो mix a bit more of D4.5. Now take the product again on your synthetic brush. And then again do the application. Again, we have to do the blending in this circular and also in this wiping motion. दो motion का हम बहुत commonly use करते हैं while blending the foundation. Now we'll do our nose. Also on the areas जहाँ पे मुझे थोड़ी सी और coverage चाहिए,
Now again we can do the blending starting from our nose, क्योंकि सबसे पहले वहां पे एप्लीकेट करा है प्रोडक्ट. Then again बहुत हल्के हाथों से उन एरियाज पे जहाँ पे और कवरेज दी है. We put some more this side. और जो भी बचा कुछ आया उसको अपने लिड्स पर लगा दूंगी मैं बिल्कुल रफली, क्योंकि we just have to blend this part. Now again हल्के हाथों से just blend this part. Also on the lids. बहुत light handed करना है because this area is very sensitive, हमारे eye वाला area. Now again जो भी थोड़ा बहुत बचा कुचा शेड है उसको थोड़ा बहुत सेंटर ऑफ माय फोरहेड में लगा लेती हूँ. Now I will be using this concealer by L'Oreal. This is a full coverage concealer and it's a medium shade. और इसको मैं for my highlighting part मैं inner and outer corner के edges पर लगा दूंगी इसे. So ये मेरे skin tone से 2 shade lighter है क्योंकि I want to highlight this part. Now in this wiping motion मैं इसको अच्छे से blend कर दूंगी. Same on the other side. Okay, so once the placement is done, we can move to our next step. But before that, let's just quickly clean the brushes जो हमें reuse करने पड़ सकते हैं. Now we can move to our next step, which is setting our base. तो base की setting के लिए I'm using this HD setting powder by MyGlam. और मैं इस powder brush को use करूंगी to do the application. इस तरीके से set कर देंगे अपना base. So even though मैंने एक creamy foundation choose करा है, but जिसका finish matte है. Even though matte है, but मेरे face पे you can still see the shine. Why? Because of my oily skin. ठीक है, अगर ये आप यही same product अगर आप dry skin पर लगाते
तो वो इस तरीके से शाइन नहीं कर रहा होता। इसलिए अपने स्किन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। जो इतना हम फोकस करते हैं ऑन द प्रेजेंटेशन पार्ट, वो यही रीजन होता है। ऑन द फोरहेड टू अच्छे से सेट होगा तभी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा मेरा बेस। नाउ ऑन माय अंडर आईज वाले पार्ट में आई जस्ट चेक अगर कोई क्रीज लाइन आ रही है ऑन द लिड्स एंड ऑन द अंडर आई पार्ट, उसको पहले हटाएंगे विद अ सिंथेटिक ब्रश एंड देन क्विकली जस्ट सेट आवर base of that area. Same step करेंगे on the other side too. Also on the lids. अब सारे एरियाज अच्छे से सेट हो गए हैं। आई डोंट सी एनी शाइन राइट नाउ ऑन माय फेस, सो वी कैन मूव टू आवर नेक्स्ट स्टेप। So for my next step हमारा है contouring. Contouring के लिए I'm using this palette by MyGlam. This is a bronzer which I'm using, HD bronzer, which is this. So ये मेरे स्किन टोन से ऑलमोस्ट 4 शेड डार्कर है, ठीक है, तभी मैं ये यूज कर रही हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम माय जॉ, इस तरीके से सर्कुलर मोशन में ही हाथ रखना है, नहीं तो पैच बन जाता है। नाउ इन दिस एरिया वी हैव टू मेक अ वी। यस गुरप्रीत, ये भी एचडी है। सो हमारे फेस के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो मैं एचडी यूज कर रही हूँ। आई के तो कोई एचडी प्रोडक्ट्स आते हैं नहीं। सो अभी तक जो हमारा एचडी प्रोडक्ट्स रहे हैं, दैट इज अ फाउंडेशन और कंसीलर, ठीक है, हमारा सेटिंग पाउडर एंड नाउ आर ब्रॉन्जर, क्योंकि अपने फेस को ही मेन एचडी इफेक्ट में हमें कन्वर्ट करना है। नाउ आई फिल इन दिस एरिया। नाउ आ गए हमारे चीक बोन वाले पार्ट पे। अगेन लाइक दिस, सर्कुलर मोशन में ही हाथ रखना है। Same here. So अगर आप एक बार भी अपना हाथ स्टॉप करते हो, देयर आर चांसेस कि एक एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में पैच क्रिएट हो जाए। और पूरा भी ब्लेंड नहीं कर देना है, क्योंकि जब इसके ऊपर ब्लशर आएगा तो ऑटोमेटिकली सेटल डाउन हो जाता है। Once this is also done, we can move to our next step, which is our nose contouring. I will be using this flat brush to do the application.
So I'll start from this area, ठीक है, यहाँ पे जो brow के टिप से start हो रहा है, वहां पे we'll imagine and just create a straight line like this. And now on the other side, once हमारा दोनों साइड एक पैरेलल लाइन क्रिएट हो जाए, we just have to do the blending. बाहर की तरफ इसको ब्लेंड करते जाना है. Yes, Sarang. So once the blending part is done, so we can move to our next step. And Sarang, yes, आप cream भी use कर सकते हो. So cream, contour या blusher या highlighter आप dry skin पर use कर सकते हो. मेरी oily skin है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था. Now for my blusher, I'm using this by K Beauty. Just a moment. And I will be using this powder brush to do the application. और जो मैं shade use कर रही हूँ, that is this. It's a nice, neutral pink tone, not very pink. थोड़ा इसमें एक brownish का touch है, ठीक है? Pink with a slight touch of brown. इसमें हम slightly smile करके apply करेंगे अपने products. Like this. Not very pink. और ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि बिल्कुल लगाया ही नहीं है. And इसके बाद we will be doing our highlighting. For my highlighter, I am using this by the Balm Cosmetics. This is the shade I am using. Starting from my nose bridge. And Cupid bow. And then my chin. Yes, Sarang, eyeshadow से भी काम चल सकता है अगर आपके पास ब्लशर नहीं है तो. Now on the cheek area, इस वाले bone पे we have to do the placement. अब इसमें भी you can see कि हाथ बिल्कुल circular motion में ही चल रहा है. Like this. So इस तरीके से एक शाइन आना चाहिए फेस पर. Same on this area. So highlighter उतना ही लगाना है जितना ऐसा लगे कि एक naturally shine provide कर रहा है हमारा highlighter.
ना कि टू मच वाला इफेक्ट दे। Okay, so once इतने पार्ट तक हो जाए, we can move to our next step, which is a brows. For my brows, I'm using this palette by Pack Cosmetics. And I will be using this angular brush which comes with this pulley. इस पुली वाले पार्ट से पहले हम अपने ब्राउज को ब्रश कर देंगे। Then I will dip my brush on the color जो मेरे ब्राउ कलर से क्लोज है। और सिर्फ एम्प्टी एरियाज को हम फिल करते हुए जाएंगे, लाइक दिस। अब ये जो हमारे ब्राउज का स्टार्टिंग पार्ट होता है, पॉइंट होता है, वहां पे हम इस एंगल में ब्रश के टिप से एक एक स्ट्रोक क्रिएट करेंगे, लाइक दिस, टू गिव अ नाइस नेचुरल इफेक्ट, एक नेचुरल लुक देने के लिए। अब अगेन इस तरीके से हम मर्ज कर लेंगे। अगेन जस्ट एम्प्टी एरियाज को फिल करेंगे, नॉट एनी अदर एरिया। Can someone from my team please fix my camera? Thank you so much, Sabha. Thank you. So yeah, the brows looks fine. Now we can move to our eye part. Eye makeup पे आ जाते हैं। So I am thinking to use my Europe Girl palette, which is this. ठीक है, इसमें काफी सारे कलर्स हैं, इस वजह से मैं ये पैलेट लेने का सोच रही हूँ। इतने सारे कलर्स हैं, ठीक है, इसमें से हम कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। साथ में we have beautiful colors of green, then we have reds. So just a moment. So I hope काफी लोग इस स्टेप तक पहुंच गए होंगे जो भी प्रैक्टिस कर रहा है। So let me just decide what color should I use. I'm thinking to use, थोड़ा मैंने ग्रीन आउटफिट पहना है, ठीक है, सो उसके हिसाब से रेड तो विल ऑटोमेटिकली विल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
रेड के साथ आई एम जस्ट थिंकिंग व्हाट टू यूज. वी कैन यूज अ बिट ऑफ पर्पल एंड ब्लू ऑल्सो. ठीक है, थोड़ा पर्पल ब्लू कर सकते हैं. वी कैन स्किप द रेड पार्ट ऑल्सो, क्योंकि हम अभी कॉम्प्लीमेंट्री मेकअप नहीं कर रहे कि हमें रेड ही यूज करना है. ठीक है, वी कैन ऑलवेज मिक्स एंड मैच आवर कलर्स. जैसे कि मैं अपने पैलेट को भी देख रही हूँ. ठीक है, कि क्या क्या कलर्स हम मिक्स एंड मैच करके यूज कर सकते हैं. सो आई कैन सी सम कलर्स ऑफ blue and we have this purple tone. So इन्हीं कलर्स से पहले शुरुआत करते हैं. ठीक है, let me start from my first brush जो मैं यूज करूंगी, which is my small tiny little blending brush. ठीक है, जिससे हम एप्लीकेट भी कर सकते हैं. So मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा एक पर्पलिश या फिर एक फ्लोटिंग इफेक्ट दूं मैं. ठीक है, so let me just clean this part. So the first color which I will be using, we can mix this purple shade. ठीक है, आपके पास जो भी पर्पल कलर हो, you can start with that. And इसको मैं अपने डेप्थ पर लगाऊंगी. ठीक है, this part. इस तरीके से. So इस पूरे लाइन में एक लाइन ड्रॉ करनी है सबसे पहले हमें. अब ये जब हम एज वाले पार्ट में जाएंगे, देन वी हैव टू मेक श्योर कि बाहर का एज थोड़ा सा पतला हो कंपेरेटिव टू द इनर साइड. ठीक है, नाउ सेम स्टेप पहले दूसरी तरफ भी कर लेते हैं. पहले जो भी क्रीज आ रही है उनको हटा देते हैं. इस तरीके से एक रफ लाइन ही ड्रॉ करनी है, बिकॉज अभी हम इसको थोड़ा सा कट कर देंगे तो ये जो भी थिकनेस आ रही है वो ऑटोमेटिकली पतली हो जाएगी. थोड़ा सा आज हम एक बोल्ड इफेक्ट का लुक कर रहे हैं. वी आर नॉट डूइंग समथिंग सिंपल. नाउ लेट्स कट दिस पार्ट. ठीक है, इसको कट करते हैं विद अ लाइटर कंसीलर. सो आई एम थिंकिंग टू यूज द सेम कंसीलर बाय लॉरियल जो मैंने अभी यूज करा था फॉर माय अंडर आई पार्ट. और मैं ये फ्लैट ब्रश यूज करूंगी टू कट द क्रीज. So let me just take the product on the tip and then let's just cut this part.
बहुत नीट लाइन होनी चाहिए व्हेन वी आर कटिंग दिस एरिया. So I'm using a flat brush like this. ठीक है, इस तरीके का एक फ्लैट ब्रश यूज कर रही हूँ मैं. I'll take some more product. जितना नीट हो सके इस लाइन को करते हैं. यहाँ पे भी let me put the excess product. ये जो लाइन है यू हैव टू मेक इट लुक लाइक दिस. ठीक है, इसी वजह से मैं एक ऐसे स्ट्रोक खींच रही हूँ इवन व्हाइल डूइंग द कटिंग पार्ट ऑफ द क्रीज. जब आप इसको नीट करते हो तो उसकी ब्यूटी ज्यादा नजर आती है. ठीक है, वंस दिस पार्ट इज डन, अब सेम इसको भी कर देते हैं. Okay, so in that case, what you can do is, ठीक है, like, okay, can someone from my team please zoom in and also huddle eyes तो नहीं होती, we have those hooded eyes. ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे मेरी भी स्लाइट hooded है. ठीक है, if I look straight, तो I have this fold, किसी की बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, first you have to touch this area. ठीक है, चाहे आपके यहाँ you have that hooded part also. आप क्या करोगे, सबसे पहले you will just draw a line between these two area. मतलब हाँ, so ये जो हमारा एरिया है, इस दो एरिया के बीच में you have to just draw a line, an imaginary line, क्योंकि एक हुडेड आई में इतना क्लैरिटी नहीं मिलती हमारी क्रीज एग्जैक्टली कहाँ है. तो आप बस एक लाइन ड्रॉ करोगे मिडिल में एंड देन यू विल कट योर क्रीज. ठीक है, कट क्रीज करते वक्त अगर आपको लगे कि आपका ये जो क्रीज कलर है वो ऊपर टच होके आपका पर्पल हट रहा है, तो वही उसके बाद आप ऊपर और इमेजिनरी लाइन करके टच कर सकते हो. सो दैट इज अपॉन योर इमेजिनरी लाइन कि आप सही पे उस जगह पे टैकल कर रहे हो कि. सो इफ यू सी कि जो मेरा ये कंसीलर कलर है, ठीक है, ये ऊपर थोड़ा टच हो रहा है. ठीक है, इट मीन्स कि पर्पल थोड़ा और ऊपर जा सकता है, तो वो हम बाद में फिक्स करेंगे.
We'll take some more of this color. And make sure जब आप ये crease बना रहे हो तो आप कोई lighter tone से ही बनाओ, not very light, at least 2 से 3 shade light भी use कर सकते हो. ठीक है, so once इतने part तक हमारा हो जाए, ठीक है, then we'll again go to our purple shade, ठीक है, and then to our first brush, which is our small brush, थोड़ा सा dip करेंगे purple में, और जहां जहां पे concealer वाला area touch हुआ है, वहां पे थोड़ा बहुत हम एक touch दे देंगे of this purple color, ठीक है, like this. ठीक है, इस तरीके से. Like this. अब थोड़ी सी और फिनिशिंग देने की नीड है इस साइड. We'll take some more concealer. अब थोड़ा सा आपको ऐसे अपने आई को थोड़ा सा ब्राउज को ऊपर करके देखना है कि लाइन कितनी इवन करने की जरूरत है. ये साइड लुक्स फाइन, दिस साइड को थोड़ा सा और नीट करने की जरूरत है, अदरवाइज इट्स ओके. ठीक है, अब थोड़ा बेटर होता जा रहा है. ठीक है, वंस हमारा इतने पार्ट तक हो जाएगा, सो व्हाट आर वी गोना डू इज, हम पहले अपना HD सेटिंग पाउडर पे जाते हैं. एंड देन वील टेक आवर फ्लफी ब्रश जिसमें कोई प्रोडक्ट नहीं लगा होगा. ठीक है, थोड़ा सा हम पाउडर में ब्रश डिप करेंगे एंड देन वील होल्ड आवर मिरर. और जो भी क्रीज लाइन आ रही, बिकॉज हमने क्रीमी प्रोडक्ट लगाया ऑन आवर लिड्स, सो ऑब्वियसली क्रीज तो आनी है. तो पहले इस क्रीज लाइन को हटा के वी हैव टू सेट आवर बेस पार्ट फर्स्ट. Same on the other side. So अभी as it is इतना छोड़ देते हैं.
अब हम क्या करेंगे, लेट्स क्लीन दिस ब्रश फर्स्ट, क्योंकि ये ब्रश अभी हमें और भी यूज करना है. Then let's take a ड्राई टिश्यू और इसको थोड़ा ड्राई कर देते हैं. नाउ अब एक क्लीन ब्रश से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें we'll be taking this pink color, ये वाला पिंक कलर थोड़ा सा लेंगे जस्ट टू डू द ब्लेंडिंग पार्ट, कि पिंक एंड पर्पल का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है. सो we'll just give a reflection of this color. ठीक है, इस तरीके से. So when you see इसका एक रिफ्लेक्शन आ रहा है, so it's creating a nice beauty of this color. ठीक है, नाउ यू कैन सी कितना अच्छा लग रहा है ये दोनों कलर कॉम्बिनेशन. ठीक है, वंस इतना हो जाए, we'll take another fresh brush which is our small blending brush. अब हम इन दोनों कलर्स को ब्लेंड कर देंगे. और इस ब्रश में मैंने कोई कलर नहीं लिया है, आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट आउट. अब ध्यान देना है, ब्लेंड करते करते हमारे इस एरिया पर ना आ जाए जहां हमने क्रीज क्रिएट करा है. Like this. Same on the other side. Now I see कि इस साइड का पर्पल थोड़ा ज्यादा ब्राइट है कंपेरेटिव टू दिस साइड, तो we have to fix that also. Now again.
अब इसमें हमें बहुत हैवी ब्लेंडिंग नहीं करनी है, हल्की हल्की ब्लेंडिंग इज मोर देन इनफ। सेम थोड़ा सा पिंक और दिख सकता है ऑन दिस साइड। ठीक है, अब इसको अभी के लिए एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि हम और कौन से कलर्स यूज कर सकते हैं ऑन दिस टाइप ऑफ लुक। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, आई विल बी टेकिंग एन एंगुलर ब्रश, या फिर वी कैन ऑल्सो टेक दिस लाइनर ब्रश। ठीक है, इस तरीके का लाइनर ब्रश ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं मेकअप फिक्सर को स्प्रे कर दूंगी। ठीक है, लाइक दिस। अब मैं इसको डिप करूंगी, ठीक है, ऑन आर ग्रीन कलर, because I'm thinking let's give a touch of green also. Now, अब एज मेरे पास एक ग्रीन आईलाइनर नहीं है, इसलिए मैं ये टेक्निक यूज कर रही हूँ। इस तरीके से लाइक दिस। नाउ थोड़ा सा और मेकअप फिक्सर लगा देते हैं। ठीक है, लाइक दिस वी कैन इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द कलर, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से वंस द एप्लीकेशन इज डन, अब हम क्या करेंगे, लोअर लैश लाइन पर भी वी विल बी यूजिंग द सेम कलर। लेट मी लुक फॉर माय स्मॉलर ब्रश। तो पहले क्लीन कर लेते हैं। Now lower lash line
के पास भी हम यही ग्रीन कलर लगा देते हैं। Like this. ठीक है, यस नीति, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। सो इतना पार्ट होने के बाद फर्स्टली आई विल डू माय काजल। आई थिंक तीन काजल ना हो तो फिर हम बैक काजल कर सकते हैं। मुझे समझ नहीं आया, अगर आपके पास तीन तीन काजल ना हो तो आई थिंक बैक काजल कर सकते हैं। तो शायद क्या आपको इनकी बात एग्जैक्टली समझ आए, बिकॉज कुछ एंडिंग में ना थोड़ा आवाज धीरे हो गई थी। आवाज उनकी थोड़ी क्रैक हो रही है। निधि हाँ। प्लीज आप रिपीट करेंगे एक बार। हमारे पास तीन काजल ना हो तो बैक काजल कर सकते हैं। क्लीन क्या? हाँ, समझ नहीं आ तीन रहा। का तीन जो काजल आपने जो नीचे लगाया है वो काजल, ग्रीन काजल? ग्रीन काजल। हाँ। हम्म। वो ना हो तो उसी जगह पे बैक काजल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास ग्रीन काजल नहीं है तो क्या वो ब्लैक काजल यूज कर सकते? जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो। और जो हम अप्लाई कर रहे हैं ना इस वक्त, दैट इज नॉट इवन अ काजल। हम आई शेडो के ही कलर से अपना लाइनर ड्रॉ कर रहे हैं और लोअर लैश लाइन पे हम यूज कर रहे हैं एक मैट आई शेडो कलर से। ओके, सो यस, अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्लैक काजल भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, थैंक यू। वेलकम। ना वाटर लाइन में मैं ब्लैक ही लगा रही हूँ। एक मिनट। Just a moment. Now, let me सारंग या आई शेडो जो मैंने लगाया है दैट इज ऑफ पाउडर। वेलकम। अब इसको टाइट लाइन में भी लगा लेते हैं। ठीक है, लाइक दिस। वंस हमारा इतने पार्ट तक हो जाए तो व्हाट वी कैन डू इज अपने उसी स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से जो भी काजल थोड़ा सा ब्लेंड हो गया है उसको ग्रीन के साथ मर्ज कर देंगे ताकि एक नाइस ग्रीनिश ब्लैक कलर डेवलप हो जाए। ठीक है, लाइक दिस। नाउ what we can do is now I'll take my angular brush। ठीक है, इस तरीके का एंगुलर ब्रश लूंगी। इसको पहले हम क्लीन कर लेंगे क्योंकि ब्राउ का कलर होगा इसमें अभी। अब इस एंगुलर ब्रश में मैं थोड़ा सा ये मेकअप फिक्सर लगाऊंगी एंड आई डिप माय दिस थिंग ऑन द ब्रश, ग्रीन कलर में डिप कर दूंगी और थोड़ा सा हम एक विंग लाइनर क्रिएट करेंगे। जो हमारा ये है ना, अभी हमारा गाइडलाइन ब्राउ नहीं है, अभी हमारा गाइडलाइन ये है। ठीक है, इसके टिप को ध्यान में रखते हुए
बहुत लंबी लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना सा भी इनफ है, बिकॉज हम अगर यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे तो वो बहुत ही ज्यादा एडवांस लुक हो जाएगा जो एक ब्राइडल कैरी नहीं कर पाएगी। इसी वजह से वी हैव टू मेक इट थोड़ा सटल। Okay, this much is also enough. Now we can go back to our small brush. ठीक है, small brush को थोड़ा एक बार clean कर लेते हैं। अगर दोनों इक्वल नहीं आ रही है तो आप ऑलवेज कंसीलर से फिक्स कर सकते हो इसके एजेस को। काफी सारे आपने यूट्यूबर्स को भी देखा होगा, वो पहले लगाते हैं एंड देन दे फिक्स इट विद अ कंसीलर। थोड़ा सा मैं पर्पल पे डिप करूंगी। ठीक है, पर्पल की इंटेंसिटी डार्क से डार्क हो सकती है, तभी वो एक एग्जैक्ट कट क्रीज का इफेक्ट देगा। So now we can do our lipstick first in this case, ठीक है, फिर we can do our mascara part. So for my lipstick, I'm thinking to use this lipstick by My Glam. This is Manish Malhotra range, and the lipstick shade is Barely There. That's the name of the shade. It's a liquid lipstick which I'm using. It's a nice nude color which has a tinge of pink. I'll take some more.
इस तरीके का एक शेड लगा सकते हो आप, वेरी सिमिलर टू दिस कलर. Now what we are gonna do is our mascara part is left. So for my mascara, I will be using this by My Glam. Same on the other side. Now on the lower lash line. Also on this part. So once हमारा इतने पार्ट तक हो जाता है, ठीक है. सो वंस हमारा इतने पार्ट तक हो जाता है, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये ब्रश लेंगे, ठीक है. इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं लेंगे. अगर कोई भी एक्सेस प्रोडक्ट गिरा है तो इट विल डस्ट ऑफ हो जाएगा वो. नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम एक हाइड्रेटिंग मिस्ट लगाएंगे अपने फेस पर, ठीक है, विच इज दिस वन बाय फ्लावर ब्यूटी, ठीक है. अब जब मैं स्प्रे कर रही थी टू क्रिएट द लाइनर पार्ट, तब मैंने दूसरा मेकअप फिक्सर यूज किया था बाय स्मैश बॉक्स. और जब मेरे को अपने फेस पे आई वांट टू क्रिएट अ डूई इफेक्ट, तो मैं यूज करूंगी एक डूई इफेक्ट वाला सेटिंग स्प्रे. थोड़े से हेयर को भी सेट करना पड़ेगा. हेयर को भी हमें उस वे में सेट करना है कि वो फेशियल शेप से जाए. बिल्कुल ही मिसमैच होगा, देन इट विल नॉट लुक गुड. I have a lot of baby hair. We cannot do anything about it right now. That is fine. But also, if you have a face like this, इस तरीके का facial shape है आपका, ठीक है, which is slightly towards round also and towards oval also. तो आपको इस तरीके से थोड़े स्ट्रैंड छोड़ना जरूरी है, ताकि वो इस एरिया को थोड़ा और बैलेंस करे. कॉन्टोर तो करता ही है प्लेस, बट अगर आप रियल में देखो तो कॉन्टोरिंग जस्ट इट्स एन इल्यूजन, ठीक है. पिक्चर्स में यू विल सी द इफेक्ट ऑफ कॉन्टोर, बट रियलिटी में यू हैव टू सेट योर हेयर आल्सो उस वे में कि आपका फेस थोड़ा और पतला लगे, ठीक है. सो दिस इज द फाइनल लुक गाइस, ठीक है. इसमें आप लैशेस भी कैरी कर सकते हो, ठीक है, और नहीं भी कर सकते हो, बिकॉज ये लुक ही अपने आप में इतना ज्यादा कलरफुल है एंड एडवांस है. एंड yes, the green liner is also, Sava, you are right, it's looking very beautiful with this color. It's complementing very much. So guys, I'm done with my look.
So I hope you like it. Okay, perfect. Thank you, Ananya. Guys, any questions? Do you guys have any questions, guys? Guys, anything you want to ask, please go ahead. Thank you, Okay, Yogita. if not, Thank you, okay, do we Smita. have any reviews? Thank you, Anjali. I think we are done here because we Yes. don't have any question in any reviews. Perfect. So thank you Yeah. so much, Melissa, for this amazing session. Thank you so much, guys, for all the compliments, and I hope कि आप भी practice करिए because this was a very difficult look to create क्योंकि एक एक step में colors बदल रहे थे हम, ठीक है? So practice is very must. आज आपने किसी ने practice नहीं करा, which is very disappointing, but make sure you do, and I'll see you in my next class. So bye bye. Bye bye, Melissa. Okay guys, so thank you so much for joining us. I hope ये session आप सभी को अच्छा लगा हो, ये look आप सभी को अच्छा लगा हो. As you have seen that it is a different kind of look जो हम generally यहाँ पर create करते हैं. So yes, it would be really great if you guys also try this. And thank you so much for joining. But before you leave, there is an important announcement. We are going to have a session with Rishabh Khanna on 8th of December, that is tomorrow. And Rishabh is a celebrity makeup artist. मैं थोड़ा बहुत और आपको उनके बारे में बता देता हूँ. So yes, Rishabh is a celebrity makeup artist who has been working in this field for last 15 years. And he has worked with Karishma Kapoor, Taapsee Pannu, Neha Dhupia, Nora Fatehi, Urvashi Rotela, and many more. And we will be creating purple smoky eye high fashion look. So yes, it is going to be an amazing session. So if you guys want to be a part of that session, please आप लोग अपने coordinator से contact करें and register करें खुद को. जो भी procedure है वो आपको बता देंगे. And yes, thank you so much for joining us today. We will see you in the next session, guys. Till then, bye bye and take care.